Hello and welcome to everyone present here. Students, today we will begin the new topic of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. And the name of the topic is the Napoleonic Code of 1804, along with its limitation. So prior to discussing, let me once again recap of the earlier topics. You already know that first of all, I had discussed with you that what is the main content of this chapter, and mainly we have to study about the formation of nation states in European continent. Then I had discussed with you the meaning of typical terminology, like what is the meaning of nationalism, how is it different from the patriotism. Then I had also discussed with you what is nation, what is nation state, and how the nation state is different from the modern state. Then we had discussed about the painting prepared by Frederick Serieux in 1848, and the painting he had prepared was depicting the motto and the wishes of the people of Europe and America, and rather better to say the world, that they are marching towards end of the monarchical form of government, and they are looking for the establishment of nation state. And for this, he had visualized in his picture that they are moving towards the Statue of Liberty. Liberty symbolizes the right to citizens, end of the monarchical form of government. And till then, 1848, America and Switzerland had already become the nation states, and France has just become the nation state in 1848, being followed by the Germany. And Germany had till then not become a nation state, still what it was confederation of 39 states, but the effort was done by the middle class education society to make it a nation state known as Frankfurt Parliament. But whatever the picture, the Frederick Serieux had wanted to depict before us, whatever he wanted to show us, it was considered to be utopian vision. He had dreamed of, he had considered a world made up of social and democratic republic, but the people were considering that whatever the thought process of the Frederick Serieux is that it is not possible. Whatever the society he has depicted in the picture, it is so ideal that it cannot exist in reality, and it was considered as an utopian vision. तो लोगों का कहना था कि उस मतलब फेडरिक सेरियो ने ये दिखाने का प्रयास किया कि अब सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सभी जगह संसार में आ जाएंगे, लेकिन इनकी जो ये सोच है ये संभव नहीं है, क्योंकि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतनी जल्दी आसानी से समाप्त नहीं होगी, और ये उनकी जो विचारधारा है, जो उन्होंने चित्र में दिखाया है, वो एक यूटोपियन विजन है, एक आदर्श कल्पना है. बट it contrary to their people ideology, the Frederick Serieux vision proved to be truth, and later on the Europe started to witness the establishment of nation states and modern states. Nevertheless, today topic is the Napoleonic Code of 1804. तो नेपोलियनिक कोड क्या है, अब ये नेपोलियन का नाम कहाँ से आ रहा है, और इन्होंने कौन सी कानून व्यवस्था यूरोप में बना कर रखी जिसका नाम नेपोलियनिक कोड है, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड बिगन इन फ्रांस इन 1789, and it transferred the rule to rule the country from monarch to the French citizen. But it could not last for a longer duration. After that, there was the rule of Robespierre, and after that there was the rule of Directory, and lastly, during 1839, the rule of Napoleon Bonaparte came in France. Because the Directory rule was not stable, and Napoleon Bonaparte took control of the rule of France, and he brought back monarchy in France. But he introduced revolutionary changes in administration, and he provided such changes in administration that it benefited the peasants, it benefited the citizens, it benefited the business class people, and these revolutionary changes in administration were known as the Napoleonic Code of 1804. And not only this, you should know during French Revolution, the French revolutionaries
had proclaimed that it is the responsibility of France and French people to liberate the other European nation from despotic rule. It means from the monarchical form of government. And with this purpose, the Napoleon, along with its army, started to invade the neighboring countries. And during 1790s, 1890s, 1790s, it invaded Belgium, Poland, Italy, Switzerland, and introduced their Napoleonic Code. So we will try to know what sort of revolutionary changes Napoleon introduced in administration that it benefited so many people, and it was not considered to be a monarchical form of government. Actually, Napoleon had brought back the monarchy once again in France, but his way of ruling, his introduction of very liberal restriction on the administration in society, in administration, and in the different sector was so convenient to the people that it was thought to be very good for the liberty of the people and the businessmen and other class of the people. And also Napoleon introduced the same administrative changes in area those were under his control. So let us see what were the main provisions of his Napoleonic Code. Generally, it is very important question, and many times it is asked. Write the main provision of Napoleonic Code. So let us see. He did away all the privileges based on birth, established equality before law, and secured the right to property. The first very clear-cut thing he did there, that he did away all the privileges based on birth. तो जन्म पर आधारित जो समाज होते थे, जन्म के आधार पर किसी को ज़्यादा सुविधा मिलती थी, किसी को कम मिलती थी. आप जानते हैं फ्रांस में ये था, मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट. तो जन्म पर आधारित सुविधा पर समाप्त को उसने समाप्त कर दिया. इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको कानून के सामने बराबर कर दिया. एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और सबको संपत्ति का अधिकार लोगों को सुनिश्चित किया. तो सबसे पहला काम क्या किया? जन्म पर आधारित जो सुविधा परक समाज था उसको समाप्त कर दिया, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया, और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. द सेकंड थिंग, ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. तो शासन करने के जो डिविजन्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसको उसने सरल बनाया. एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पीजन फ्रॉम मोनेरियल ड्यूज. तो उसने क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम, सामंतशाही प्रथा, मतलब बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे और पूरा सोसाइटी जो था, मतलब छोटे छोटे जो किसान होते थे वो बड़े बड़े सामंत के यहाँ, मतलब किसान खेती करते थे, उनके ज़मीनों पर खेती करते थे, और लैंडलॉर्ड्स का ही सोसाइटी में ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली वो डेवलप होते थे, और छोटे किसान को ज़्यादा मतलब लाइफ स्टाइल काफ़ी मिजरेबल रहता था. तो फ्यूडल सिस्टम कहते थे. तो उस फ्यूडल सिस्टम को उसने समाप्त कर दिया, और मतलब किसानों को बेगार की प्रथा से छुटकारा दिलाया. अगर किसान, छोटे छोटे किसान जो कर्ज नहीं चुका पाते थे, तो उन्हें बेगारी करना पड़ता था, बिना पैसे का काम जमींदार के घर करना पड़ता था. तो ये सब चीज़ें उसने फ्रीड कर दिया. तो एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम मोनेरियल ड्यूज. गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड. शहरों में व्यापारियों की एक माने यूनियन होता था, संगठन होता था, जिसमें वही व्यापारी व्यापार करना चाहते थे, नए व्यापारियों को आने नहीं देना चाहते थे. तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो था उसको उसने समाप्त कर दिया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड. तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट किया गया कि अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मतलब सामानों के आवाजाही आसानी से हो, व्यापारियों को बहुत मतलब आसान हो. द पीजेंट्स, द बिजनेसमैन, दे एंजॉयड फ्रीडम इन मैनी एस्पेक्ट. तो ये जो नेपोलियन ने अपने जो सुधार किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कन्वेनियंट लोगों के लिए हुआ, लोगों के लिए भी हुआ, बिजनेसमैन के लिए भी या किसानों के लिए भी हुआ, तो सभी लोग खुश हुए और इसको अच्छा माना. और नेपोलियन ने फ्रांस में ही से लागू नहीं किया, जहाँ जहाँ वो जीतता गया, क्योंकि उसे पूरे यूरोप जीतने की चाहत थी, वहाँ वहाँ भी इसको लागू करते गया. तो दिस इज नोन एज द नेपोलियनिक कोड, दैट he abolished the
privilege-based society, established equality before law, and secured the right to property, made the administrative division very simple, guild restriction were removed, transport and communication were improved, and abolished the feudal system, and peasants freed from the manorial dues. So due to all these changes, the peasants, the businessmen enjoyed very freedom in many respects. But although this was very lucrative and very convenient to the people, but there were some limitation and shortcomings of this code. इसकी कुछ कमियां भी थी. क्या कमियां थी? First of all, the administration was not accompanied with the political freedom. तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में लोगों को सुविधाएं मिली, मतलब प्रशासनिक सुधार किए गए, उसी तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को नहीं मिली. मतलब पॉलिटिकल, मतलब लोगों को लिबर्टी होकर फिर अपना गवर्नमेंट बनाए, राजा को हटाए, इस तरह की उसने पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया. एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस किए बट पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला. इंक्रीज टैक्सेशन एंड कंट्रोल ओवर सेंसरशिप, टैक्स बढ़ा दिए नेपोलियन ने क्योंकि उसे खर्च ज़्यादा हो रहा था. सेना को रिक्रूटमेंट उसे बढ़ाना था क्योंकि उसे यूरोप को पूरा जीतना था. और सेंसरशिप मतलब प्रेस की आज़ादी उसने कंट्रोल में कर लिया. कोई भी अपने मन से कोई भी किताब नहीं छाप सकता था, पेपर में कुछ नहीं लिख सकता था, कोई भी नाटक, कविता, कहानी कुछ भी नहीं लिख सकता था जिसमें राजा की बुराई हो, शासक की बुराई हो. तो जब जिस भी देश में, जिस भी समाज में प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है, उसी को सेंसरशिप कहते हैं. तो as we see that although Napoleon had introduced revolutionary changes in administration, although he was a monarch, he had brought back the monarchy in France, but he had introduced very revolutionary changes in France, and that is known as the Napoleonic Code. But there were few shortcomings of it. Sorry. And it was the administrative changes, freedom were not accompanied with the political freedom. तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, उसमें फ्रीडम मिला, उसमें सुविधा मिली, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला. टैक्स बढ़ा दिए गए और सेंसरशिप लागू कर दिए गए. एंड फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल इन आर्मीज, और फोर्स रिक्रूटमेंट आर्मी में, फ्रेंच आर्मी में लोगों का किया गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण. First of all, you should know how the incident and events evolve in this chapter. ये चैप्टर कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. पहले तो हम लोगों ने मतलब एक पिक्चर के बारे में पढ़ा, फेडरिक शेरियू के ने बनाया था कि अब यूरोप और अमेरिका में इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और लोगों ने उसको यूटोपियन विजन माना. फिर फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ सबसे पहले, वहाँ मोनार्की के अगेंस्ट लड़ाई हुई, वहाँ नेशन का कंसेप्ट आवा. नेशन का कंसेप्ट और नेशन स्टेट बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले वहाँ शुरू हुई फ्रांस में. फिर फ्रांस में नेपोलियन का राज आया, तो नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए और जिसका नाम नेपोलियनिक कोड पड़ा. लेकिन अब फ्रांस को छोड़ करके अब बाकी यूरोप में नेशनलिज्म की विचारधारा आखिर कैसे धीरे धीरे फैली. दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू नो. If you look at the map of the mid-18th century Europe, you will find that there was no nation state as we know today. तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में उस तरह के नेशन स्टेट नहीं होते थे जैसे आजकल हम लोग जानते हैं. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons whose rulers had their own autonomous territories. तो जैसे आजकल हम लोग जर्मनी का नाम लेते हैं, इटली का नाम लेते हैं, स्विट्जरलैंड कहकर देशों को बुलाते हैं, वो मिड 18th सेंचुरी तक, मतलब 1750 के आसपास तक वो किंगडम के रूप में थे, या डचेस के रूप में थे, या कैंटन्स के रूप में थे. तो किंगडम थोड़ा बड़ा होता था, डचेस थोड़ा छोटे होते थे. ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी होती थी जिसका एक ऑटोनोमस टेरिटरी होती थी जिसका एक शासक होता था, और लोगों को वहाँ पर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का ही अंदर रहना पड़ता था. द पीपल हैड नो फ्रीडम. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. जहाँ तक ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप की बात है, तो पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र होते थे, और जहाँ पर विभिन्न किस्म के विविधता वाले लोग रहते थे. उस क्षेत्र में जो साम्राज्य होते थे, वहाँ ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की होती थी, एक ही साम्राज्य के अंदर में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर. वे अपने आप को एक सामूहिक अपनेपन की भावना उनमें नहीं होती थी, क्योंकि नेशन बनने के लिए, नेशन तो ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है, तो जब तक ग्रुप के पीपल अपने को एक दूसरे के करीब नहीं पाएंगे, एक दूसरे से अपने को जुड़ा हुआ महसूस नहीं पड़ेंगे, तब तक को नेशन का आइडिया ही फॉर्म नहीं होगा. और जब नेशन का आइडिया नहीं फॉर्म होगा तो नेशनलिज्म नहीं आएगा, और जब नेशनलिज्म
नहीं आएगा तो फिर नेशन स्टेट की बात कहाँ से आएगी? तो अभी कॉमन कल्चर और कॉमन आइडेंटिटी के रूप में लोग सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में नहीं देखते थे, क्योंकि वहां पर डाइवर्स पीपुल एक ही साम्राज्य के अंदर रहते थे, इसलिए उसको मल्टी नेशनल एम्पायर कहा जाता था। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, तो वो हमें प्रायः अलग अलग भाषा और अलग अलग नस्ल के होते थे। अब ये डिफरेंसेस कैसे था कि यूरोप में मतलब जो था डिफरेंट एम्पायर्स जो होते थे उसमें डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग रहते थे, आखिर इस बात का हमें पता चलेगा कैसे? तो इसके लिए हम लोगों ने एक केस स्टडी लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है ये प्रूफ करने के लिए कि द यूरोप वाज ए पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड डायलेक्ट्स। तो यूरोप में जो मतलब किंगडम्स होते थे, डचेस होती थी, कैंटन्स होते थे, उसमें जो लोग रहते थे वो डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के होते थे। अब जैसे एक हैक्सपर एम्पायर का एग्जांपल लिया गया है, तो हैक्सपर एम्पायर में कैसे डाइवर्स पीपल रहते थे उसको हम लोग देखते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द यूरोप वाज रूल्ड बाय द किंगडम, कैंटन्स एंड डचेस। ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि यूरोप के जो मोस्ट ऑफ पार्ट थे वो वहाँ किंगडम होते थे या कैंटन्स होते थे या डचेज होते थे। फॉर एग्जाम्पल हैक्सपर एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो हैक्सपर एम्पायर जो था ऑस्ट्रिया हंगरी, इसमें मेन दो मतलब क्षेत्र थे जिस पर इसका बड़ा सा राज्य फैला हुआ था। उसके अलावे टायरोल, सुडेटेनलैंड और बोहेमिया का भी इलाका इसमें आता था। मोस्टली द पीपल इन डिफरेंट टेरिटरीज स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स। तो अब हैक्सपर एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी, अभी ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग देश है, जो था मतलब उस पर शासन करता था और उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती थी। कैसे? एरिस्टोक्रेट जो संपन्न तबका था वो जर्मन लैंग्वेज का यूज करता था। लोम्बार्डी और वेनेसिया क्षेत्र में इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे। हंगरी में मैगमार लैंग्वेज बोलने वाले रहते थे और ग्लेसिया में पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो एक ही एम्पायर, हैक्सपर एम्पायर का यहाँ एग्जाम्पल दिया है टू मेक अस फील, हमें यह एहसास दिलाने के लिए कि इन यूरोप देयर यूज्ड टू बी किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स which were autonomous territories, and in those territories diverse people used to live, which used to be such a situation they never identify themselves as a collective identity and collective belongingness, and that was the first hurdle for the formation of nation. And here we take the example of Habsburg Empire, and where he find that in Habsburg Empire ruling mostly on Austria-Hungary and including area like Tyrol, Sudetenland and Bohemia, the aristocratic people used to speak German language. The Lombardy and Venetia area people used to speak Italian language, and Hungary area people used to speak Magmar language, and Galicia people used to speak Polish language. Then what was the situation of the society? Because here we are trying to know that among which group of people the nationalism ideology first time emerged. आखिर यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत समाज में रहने वाले किन लोगों के बीच में शुरू हुई? आखिर नेशनलिज्म की शुरुआत हुई तभी तो फिर धीरे धीरे नेशन स्टेट बने। तो अब हम लोग को यही जानना है कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि आखिर समाज में जो सोसाइटी में जो लोग रहते थे विभिन्न तरह के, आखिर किस ग्रुप ऑफ पीपुल के बीच में ये फर्स्ट टाइम नेशनलिज्म की भावना आई, और वो जो आई भी तो वो किस तरह का नेशनलिज्म था। Now we are trying to know. First of all, we see that there were three groups of people, three categories of people in the society. The first category of people living in society were known as aristocrat. तो समाज में जो सबसे मतलब पहला कैटेगरी था पीपल का, उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेट, संपन्न तबका, धनी संपन्न तबका। The aristocrats were rich and wealthy people. एरिस्टोक्रेट जो होते थे वो धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे। They own estates in the countryside. गाँव में इनके बड़े बड़े जमीन होते थे, बहुत बड़ा बड़ा खेत होता था इनका। They spoke French in higher classes and social gatherings. तो जब भी कभी भी इनकी कोई सोशल मीटिंग होती थी या पर्व त्योहार या शादी विवाह के मौके पर ये कलेक्ट गैदरिंग करते थे, तो वहां पर वे फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। दे सेट अप मैरिज कॉन्टैक्ट्स विद in their social status. So although the aristocratic people used to live in different kingdoms, different duchies, cantons, but when they were living apart from each other, they were connected with each other with marriage ties. उन लोगों के बीच में शादी विवाह का बंधन होता था और वे फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे। But among this group of people there was no any notion of
nationalism, idea of nationalism. The second group of people here I will discuss, this were peasants. तो पहला एक धनी संपन्न लैंडलॉर्ड का ग्रुप हो गया और दूसरा पीजेंट्स का ग्रुप हो गया. द पीजेंट्स वेर द स्मॉल फार्मर्स, जो किसान होते थे वो छोटे छोटे मतलब फार्मर होते थे. दे वेयर नोन एज सर्फ्स एंड वेयर असाइंड टू कल्टिवेट द वास्ट लैंड होल्डिंग्स ऑफ एरिस्टोक्रेट और लैंडलॉर्ड्स. तो ये जो सर्फडम सिस्टम था, मतलब एक तरह से दास प्रथा की तरह खेती करते थे ये लोग, तो सर्फ कहे जाते थे छोटे छोटे किसान. ये जमीन को किराए पर लेकर खेती करते थे बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट के, और इनका जीवन मिजरेबल रहता था, कठिनाइयों से भरा होता था. तो एक तरफ एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप थी, दूसरी तरफ पीजेंट ग्रुप था. पीजेंट्स का मतलब संख्या ज्यादा थी, 70-80% पॉपुलेशन पीजेंट्स का ही होता था. इन दोनों के बीच में नेशनलिज्म की भावना नहीं आई. लेकिन 1750 के बाद से थोड़ा सा टाउन्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी और थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो चुका था, और सोसाइटी में एक नया ग्रुप आया जिसका नाम पड़ा न्यू मिडिल एजुकेटेड क्लास. तो न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास जो आया यूरोप में, इन्हीं के बीच में सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना आई. तो ये न्यू मिडिल क्लास किससे मिलकर बना था? दे वे आर वर्किंग क्लास पीपल, ये कामगार लोग थे. The industrialist, the businessman, the professionals like teacher, lawyers, etc. are the middle class category. तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल से मिलकर ये ग्रुप बना था न्यू मिडिल क्लास, और इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब आते थे. बिजनेसमैन भी आते थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते थे. सो हियर वी कम टू नो that the making of nationalism in Europe started with the coming the notion of nationalism ideology first time in the middle class educated society, and it was comprised of industrialist, businessman and professionals like doctor, engineer, professor, teachers, etc. Here in picture you may see how the lavish lifestyle the aristocrat people were using, which types of attires they used to, किस तरह के पोशाक ये पहनते थे, and how the miserable condition life situation of a peasant. You may see there is vast difference among their clothes and their living standard. द लिबरलिज्म और द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसका नाम है लिबरल नेशनलिज्म. इट इज जनरली आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल नेशनलिस्ट. नेशनलिज्म का तो मीनिंग समझ गए, लेकिन ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म की जो सबसे पहले शुरुआत हुई यूरोप में, वो लिबरल नेशनलिज्म के रूप में ही हुई. पूर्ण नेशनलिज्म नहीं हुई, पूर्ण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना नहीं हुई, लेकिन लिबरल नेशनलिज्म के रूप में हुई, क्योंकि सभी को इसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे. तो अब ये देखते हैं लिबरल नेशनलिज्म क्या है. द टर्म लिबरलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिब्रे विच मीन्स फ्री. वैसे आपका लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है फ्री. तो फ्रीडम का नोशन लेकर, ये आइडिया लेकर ये नेशनलिज्म आया ही. तो ये किस तरह की आइडिया इसमें थे? Liberal nationalism does not want liberty in only political arena, but it also looks for liberal ideology in terms of इकोनॉमिक एरिना. तो ये केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही फ्रीडम नहीं चाहता था लिबरल नेशनलिज्म, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी फ्रीडम चाहता था. तो उसके क्या आइडियोलॉजी थे हम लोग देखते हैं. इन पॉलिटिकल सेक्टर ये क्या किस तरह की आइडियोलॉजी इसका था? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सभी व्यक्तियों को फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, और इक्वलिटी और कानून के सामने सभी बराबर होना चाहिए. ओके. गवर्नमेंट ऑफ द कंसेंट, सरकार जो होना चाहिए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ नहीं होनी चाहिए, लोगों के सहमति से सरकार बननी चाहिए. मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्ड बाय ए पार्लियामेंट. तो वे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट, इनका ये आइडिया था कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंट. इट शुड बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट. फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो थे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी चाहते थे, बट दे वेयर नॉट इन फेवर ऑफ राइट टू वोट टू एवरीवन. सभी लोगों को वोटिंग राइट्स ये नहीं देना चाहते थे. दे वांट ओनली वोटिंग राइट्स टू द रिच पीपल. ये चाहते थे कि केवल रिच लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिले. और यही फर्स्ट टाइम फ्रांस की क्रांति में भी हुआ था. तो मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी में ही लिबरल नेशनलिस्ट की सबसे पहले जो भावना आई, और ये जो नेशनलिस्ट का जो रूप था इसका नाम पड़ा था लिबरल नेशनलिज्म. तो लिबरल नेशनलिज्म साउथ not only freedom in political arena but also in economic sector.
In political sector, they wanted that every individual should be free and every individual should be equal before law. The government should be based on consent. It means democratic form of government based on constitution and parliament. There should be end of monarchy and privilege-based society. They wanted freedom of press, but they were not favor of voting rights to all. They wanted voting rights to only rich people. Although they were not fully democratic, but it was first step forward towards the democracy and beginning of the end of the monarchy. Then what sort of freedom they wanted in economic sphere? दे वांटेड फ्रीडम ऑफ मार्केट, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स. तो जो साम्राज्य होते थे उसमें व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी. व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान लेकर जाने में जगह जगह टैक्स देने पड़ते थे और मार्केट्स पर काफ़ी राजा का कंट्रोल होता था. तो इस तरह से व्यापार करने में मुश्किलें होती थी. तो लिबरल्स लोग चाहते थे कि व्यापारियों को भी और व्यापार करने में भी सुविधा मिलनी चाहिए. तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, बाजार में थोड़ी सी नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ मार्केट, ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्स देने वाला प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ मार्केट, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, सामान का साम्राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से व्यापारी ले जाए, हर जगह उसे टैक्स ना देना पड़े. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, कस्टम ड्यूटीज एंड मेजरमेंट्स. पूरे साम्राज्य में एक समान नापने और तौलने की पैमाना होना चाहिए. ये नहीं कि अब एक इलाके से दूसरे इलाके में गए तो वेट का चेंज हो गया, एक इलाके से दूसरे इलाके गए तो फिर नापने का पैमाना चेंज हो गया. तो इस तरह की चीज़ों से व्यापारियों को प्रॉब्लम्स होती थी. तो लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड फ्रीडम ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स. सेकंड दे वांटेड यूनिफॉर्म, माने एक समान सिस्टम ऑफ वेट्स, कस्टम ड्यूटीज एंड मेजरमेंट्स. मतलब कस्टम माने एक इलाके से दूसरे इलाके में जब जाने से व्यापारियों को जो कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, उसको कस्टम ड्यूटी का, उसमें भी वो समानता चाहते थे. और इसी क्रम में जर्मन स्पीकिंग इलाके में, जिस जर्मन स्पीकिंग इलाका जो था 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, वहां पर एक व्यापारियों का यूनियन बना, संगठन बना, जिसका नाम पड़ा कस्टम यूनियन. तो कस्टम यूनियन एक बड़ा व्यापारियों का संगठन बना, क्योंकि व्यापार में वो थोड़ा सा मतलब सुधार चाहते थे व्यापार करने में, और इसका नाम पड़ा जॉलवेरिन. तो प्रसिया, जो 39 स्टेट्स थे उसमें प्रसिया सबसे इंपॉर्टेंट था. तो प्रसिया के इनिशिएटिव से एक कस्टम यूनियन बना, मैंने शुल्क संघ बना, जिसका नाम जॉलवेरिन पड़ा. और ये क्या किया जॉलवेरिन ने? द यूनियन था, एक संगठन था, और इसने क्या किया? द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2. तो इसने सबसे पहले मैंने जो चुंगी हर जगह पर देना पड़ता था व्यापारियों को, उसको उसने समाप्त कर दिया, और करेंसी जो होते थे 30 तक करेंसी थी, उसको 2 कर दिया. ये जर्मन स्पीकिंग इलाके में लागू हुआ. उसके बाद इस कस्टम यूनियन जो था जॉलवेरिन, इसने दूसरा काम क्या किया? ये ओपन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर द मूवमेंट्स ऑफ, और इसने रेलवे का नेटवर्क भी थोड़ा बढ़ाया ताकि व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने में आसानी से. तो वी कम टू नो दैट लिबरल नेशनलिज्म वाज द फर्स्ट emergence of nationalist idea in Europe, and it came in among the people, middle class educated society. It was comprised of industrialists, businessmen, and professionals like doctor, engineer, lawyers, etc. And their ideologies were liberty in two sector, political as well as economic and social sector. Political and social sector, they wanted that there should be freedom to all individual and all should be equal before law. The government should be based on consent, and there should be democratic form of government based on constitution and parliament. There should be end of monarchy and end of abolition of the privileged society. They also wanted the freedom of press, but they were not in favor of the voting rights to all. They wanted voting rights to only rich people. As far as in economic sphere, they what were their ideologies? They wanted freedom of movements of goods and capitals. They wanted uniform system of weight and measurement and duties. And with the initiative of Prussia in German-speaking region, custom union was formed named Jolverin. Jolverin abolished the tariff barriers and reduced the current number of currency over 30 to 2, and also it helped in the development of network of railways for the free movements of goods. So in this way, our intention was to know that from where did the first time the idea of nationalism in Europe started to take its birth, and it was among the
मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी एंड इट वाज नोन एज द लिबरल नेशनलिज्म। तो क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल नेशनलिज्म, व्हाट वेयर द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। Now there is a new topic and it is known as the conservatism or conservatives. So who were conservatives and what were their ideology? Let us see. कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, मतलब कुछ बचा कर रखना। तो कंजर्वेटिव जो थे वो संरक्षित करना चाहते थे, कुछ चीज बचा कर रखना चाहते थे। क्या बचा कर रखना चाहते थे? जो ओल्ड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिंबल हो, ओल्ड कस्टम्स हो, ओल्ड ट्रेडिशंस हो, जो राजशाही के प्रतीक हो, उसको अभी वो नष्ट नहीं होना दें। वो पुरानी मतलब बातों में विश्वास, पुरानी मतलब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब परंपरागत संस्थाओं में वो विश्वास करते थे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना सोसाइटी में, जिनको कि हम लोग कहते हैं कि ये बहुत कंजर्वेटिव नेचर के हैं, मतलब ये बदलाव पसंद नहीं करते हैं, परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ों में ही अभी वे उलझे रहते हैं, पुरानी चीज़ों को ही पसंद करते हैं। तो कंजर्वेटिव्स जो थे रूढ़िवादी, इसको कहते हैं रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादी थे। एंड द कंजर्वेटिव्स वांटेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, द चर्च एंड द सोशल हायरार्की। तो वो मोनार्की, राजतंत्र, चर्च, सोशल हायरार्की, मतलब स्टेट वाइज जो बेस्ट प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी है, ये सब वो चाहते थे कि इट शुड कंटिन्यू। इनका भी ग्रुप एक सोसाइटी में था। सोसाइटी में तो एक ग्रुप लिबरल नेशनलिज्म का हो गया, दूसरा ग्रुप कंजर्वेटिव लोगों का था। तो वो दे बिलीव इन द ओल्ड ट्रेडिशन एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, like this. They believed a modern, but although they believed in old tradition and old institutions and wanted that changes should take place slowly, but they believed a modern army, an efficient bureaucracy, and abolition of serfdoms and feudalism could strengthen monarchy. तो देखिए कंजर्वेटिज्म आखिर आया कैसे यूरोप में। तो आपको मैं ये बता दूं कि Napoleon Bonaparte was defeated in 1815 in the Battle of Waterloo by four major power of Europe, that is called Russia, Prussia, Austria and Britain. तो चार मेजर पावर मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई और उसके बाद वहाँ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आ गई। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में हार गया। यूरोप की चार शक्तियां मिलके महाशक्तियों ने उसे हराया था 1815 में, और ये चार शक्तियां थी मतलब रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया एंड ब्रिटेन। और इसके बाद यूरोप का फ्यूचर तय करने के लिए इन्होंने वियना में एक मीटिंग की अंडर द चांसलर ऑफ ड्यू मेटरनिक, और उसमें फिर उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस में, और इससे पहले हम लोग कंजर्वेटिव्स के बारे में जान लेते हैं कि ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थी ये कैसी थी। They believed a modern army, an efficient bureaucracy, and abolition of serfdom and feudalism could strengthen monarchy. तो ये जो 1815 के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स जो आई, वो जो थी उनका एक विचारधारा ये था कि गवर्नमेंट तो हम लोग मोनार्की ही रखेंगे, लेकिन आर्मी में आधुनिकीकरण करेंगे, प्रशासन को हम लोग कुशल बनाएंगे, और सर्फडम मतलब जो किसानों के छोटे जो दास प्रथा पर आधारित जो कृषि पद्धति है उसे खत्म करेंगे, फ्यूडलिज्म को खत्म करेंगे। तो इससे हमारा राजतंत्र ही मजबूत होगा। मतलब कि डेमोक्रेसी तो हम लोग लाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग राजतंत्र को मजबूत करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ चेंजेस भी करेंगे कि आर्मी को मॉडर्न बनाएंगे, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसको कुशल बनाएंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, सर्फडम और फ्यूडलिज्म सिस्टम को समाप्त कर देंगे। तो इससे हमारा मोनार्की मजबूत होगा। They imposed censorship laws to control over freedom of speech in newspaper. लेकिन ये कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट थी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देना चाहती थी, ये जो सेंसरशिप लागू करके रखना चाहती थी। दे क्रिटिसाइज एंड कर्ब ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट अगेंस्ट मोनार्की। और जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट विचारधारा के लोग थे उनकी सारे एक्टिविटीज को इन्होंने कुचल दिया। दे वेयर ऑटोक्रेटिक इन नेचर, ये बहुत ही निरंकुश होती थी, एंड दे नॉट टॉलरेट their condemnation and they curbed all the activities of liberal nationalists. तो
कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स 1815 के बाद यूरोप में जो लागू हुई वो जो थी वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक थी और लिबरल नेशनलिज्म, फ्रीडम की बात करने वाले, लिबर्टी की बात करने वाले लोगों को पनिश करती थी. The conservative government established after 1850 were very autocratic in nature and did not tolerate dissent. तो ये नहीं चाहते थे कि कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करो. तो conservatives were those who were believed in old tradition, monarchy, and social hierarchy. And the conservative governments were established in Europe in after 1815, and those governments believed that a modern army, efficient bureaucracy, and abolition of serfdom and feudalism may strengthen the monarchy. They imposed censorship law to control the freedom of speech. They criticized and curbed all activities of liberal nationalists against monarchy. तो लिबरल नेशनलिस्ट वही थे जिसमें नेशनलिस्ट की पहले भावना आई थी मिडिल क्लास एजुकेटेड सोसाइटी में, और इस तरह के एक्टिविटी को वो एकदम कुचल नहीं देते क्योंकि वो राजतंत्र को समाप्त नहीं होना देना चाहते थे. In 1850, representative of Europe, Britain, Russia, Austria, and Prussia, who had collectively defeated the Napoleon, met at Vienna to draw a settlement for the future of Europe under the Chancellor of Austria, Duke Metternich, and draw up a Treaty of Vienna in 1815. तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई. यूरोप की 4 महाशक्तियों ने मिलकर उसको हराया था क्योंकि नेपोलियन जो था पूरे यूरोप को जीतना चाहता था और वो राजतंत्र के विरुद्ध था, मोनार्की को हराता था और वहाँ पर वो नेपोलियन कोड लागू करता था, लोगों को फ्रीडम देता था बहुत सारे. तो इससे जो राजतंत्र थे वो लोग घबरा गए थे राजा लोग, और 4 महाशक्तियाँ ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया. और उसके बाद यूरोप का भविष्य तय करने के लिए वियना में उन्होंने एक मीटिंग की. ऑस्ट्रिया में है वियना, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के नेतृत्व में, और इस मीटिंग में एक ट्रीटी संधि पास हुई जिसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ वियना. तो व्हाट वेयर द मेन प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है. The Vienna Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की. The Bourbon dynasty, which was deposed during the French Revolution, was restored to power. नेपोलियन तो फ्रांस में राजा था, उसी का शासन चल रहा था और उसने नेपोलियन कोड भी लागू किया था. अब वो हार गया था तो वहाँ पर फिर से एक बार बर्बन डायनेस्टी को वियना ऑफ कॉन्फ्रेंस के तहत लागू कर दिया गया. फिर से फ्रांस में राजतंत्र वापस आ गया और बर्बन डायनेस्टी, जिसका लुई 16 राजा हुआ करता था, उसी राजवंश को पुनः फ्रांस में लाया गया. ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर क्रिएटेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर. और फ्रांस के सीमा पर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य कायम कर दिए गए कि फ्रांस जो है एक्सपेंशन न करे, आगे विस्तार न करे, क्योंकि कोई भी क्रांति फ्रांस से ही शुरू होती थी. मेटरनिक कहता भी था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द यूरोप कैच कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है. मतलब कोई भी क्रांति की शुरुआत फ्रांस से ही होती है, इसलिए फ्रांस को पहले रोकना जरूरी है. तो फ्रांस के बाउंड्री पर छोटे छोटे राज्य कायम कर दिए गए. बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट मेड बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड. लेकिन जर्मनी जो 39 स्टेट्स का संघ था, नेपोलियन ने जिसको बनाया था, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया. जर्मन स्पीकिंग रीजन में छोटे छोटे 39 स्टेट्स थे. दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ एंड जिनेवा वाज एडेड टू द पिडमोंट इन द साउथ. तो फ्रांस के सीमा पर जो राज्य कायम किए गए, किंगडम ऑफ जो नीदरलैंड था जिसमें कि बेल्जियम भी आता था, उसको नॉर्थ में वहां पर स्थापित किया गया और जिनेवा को पिडमेंट से जोड़ दिया गया. ऑस्ट्रिया वाज टू कंट्रोल द नॉर्दर्न इटली. ऑस्ट्रिया जो था वो नॉर्दर्न इटली पर अपना कंट्रोल करने वाला था. और रसिया गॉट पोलैंड वाइल प्रसिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी. तो रसिया को मतलब पोलैंड का हिस्सा मिला और प्रसिया को सैक्सोनी मिला. तो ये 4 महाशक्तियां थी, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, इन्होंने मिलकर हराया था. द इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्की एंड कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. तो आपको ये जानना चाहिए कि द गवर्नमेंट्स विच वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कॉन्फ्रेंस इन यूरोप आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वेयर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड दैट इज नोन एज कंजर्वेटिज्म. जब नेपोलियन की हार 1815 में हो गई यूरोप की 4 महाशक्तियों के द्वारा, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रसिया, तो इसके बाद इसको बार्क भी कहते हैं. तो इसके बाद यूरोप में जो सरकारें बनी वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थी. कंजर्वेटिव गवर्नमेंट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी दे वेयर वेरी autocratic in nature and did not tolerate their dissent. They curbed all activities of liberal nationalists. They also imposed freedom of expression
and the conservatives were of opinion that if the army is made army is modernization is done, efficient bureaucracy is made, abolition of servant and feudalism is done, the monarchy will automatically become strengthen. तो ये लोग भी मोनार्की जो थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स वाले जो मोनार्की, तो कहने का मतलब कि यूरोप में 1815 के बाद फिर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सभी जगह आ गई। नेपोलियन ने जहां जहां जीत करके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे वो सब हट गए, और वियना कॉन्फ्रेंस में फिर फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया और उसके सीमाओं पर छोटे बड़े राज्य काम कर दिए गए, और जर्मन कन्फेडरेशन को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट थे उन्होंने लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल कर लिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब सेंसरशिप लागू कर दिए। लिबरल नेशनलिस्ट के सारे लोगों को मतलब उसने पनिशमेंट करना शुरू कर दिया, और अपनी थोड़ी सी भी बुराई वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो these were the ideology of conservatism. So two types of questions may be asked: what do you mean by conservatives, and what were the main provision of Vienna Congress? So Vienna Congress was held under the Chancellor of Austria, Duke Metternich, and some provisions were adopted here, that Bourbon dynasty was restored in France and series of states created at the boundaries of France to stop its expansion. So in this way, we come to know about the making of nationalism in Europe, and first of all, we had discussed about the Napoleonic Code, then making of nationalism, and the patchwork of Habsburg Empire, and the three social groups of society in Europe, and then we discuss about what do you mean by liberal nationalism and what do you mean by conservatism. So okay, and also Vienna Conference we discuss, and next time we will discuss about the revolutionaries. So till then, okay to all of you. Thank you to all of you.